Hello and welcome to Sanyukta Singh Studio, guys. And this episode of Casual Talks is going to be very much important, as I am calling a NIFT alumni, Aishwarya, who belongs to NIFT Hyderabad Center, and under this session she is going to share about her experiences of 4 years in that very college. She is going to talk about internships, how to get a good CGPA, how to prepare yourself for jury, what is the campus placement, how is the campus, how is the mess facility, hostels kaise hai, and almost about everything. So stay tuned for this complete episode because you are going to learn a lot. So guys, let's get started to this session. So when did you decide that you wanted to go for designing and not for like medical, engineering, all those? When did you decide? So I had been preparing for medical, but the thing with NIFT was that I had a hobby of drawing and painting. So, and my parents knew about that. So the thing is that my dad filled the form and he just convinced me that you go give the exam. So I just gave the exam and yeah, I cracked it. And then, I got into medical, but then I was getting dental, which was the thing that I didn't wanted to take. So I thought, yeah, the other option I have is NIFT. And since I really like, art and craft and all these things, so I thought of taking it as a career. And since NIFT and designing is an emerging career these days, so yeah, I thought it's a better career option. So according to you, what do you think कि किससे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, स्ट्रीम्स को देनी चाहिए या फिर आपके कैंपस को देनी चाहिए? एंड आपने क्या चूज़ किया? I am in Hyderabad. I was in Hyderabad campus and the department was textile designing. See, the thing is that for the aspirants who don't have any idea कि उनको किस चीज में या किस फील्ड में जाना है, I would just suggest them to go for the best option they have currently. And the thing is कि आप किसी भी डिजाइनिंग की फील्ड में चले जाओ ना, you are doing your bachelor's in designing, right? तो आप आगे भी जाकर ना किसी भी चीज में भी खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो. Like I was in textile, but then I got exposure to a lot of other stuff like photography, graphic designing, etc. So yeah, you can explore several fields. The thing with the campus is that campus आप किसके लिए लोगे? Everything is taught in all of the campus. And पहले myth ये था कि placements नहीं होते, बड़े campuses में placement होते, but thing these days is that campus placement. कांगड़ा के प्लेसमेंट इतने अच्छे गए हैं, लाइक 100% प्लेसमेंट गई है. सो गाइज ऑन दैट नोट मैं बोलूँगी कि बहुत सारे बच्चे जो स्ट्रीम्स चूज करने के पीछे नहीं भागते हैं, वो सेंटर के पीछे भागते हैं, लाइक दे वांट टू गो टू निफ्ट बैंगलोर और निफ्ट दिल्ली, एंड उनको जाना टेक्सटाइल्स में था या फैशन में था, बट दे चूज लेदर डिजाइनिंग. एंड अल्टीमेटली क्या होता है कि यू आर नॉट एबल टू स्पेंड दैट 4 years इन योर कॉलेज बिकॉज आपने सही स्ट्रीम चूज नहीं की. एंड आप छोटे सेंटर में भी हो अगर, सो देर आर 100% प्लेसमेंट. अभी कन्नूर का 100% प्लेसमेंट हुआ था. सो पढ़ाई हर एक सेंटर में उतनी ही अच्छी है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है. ऐसा कहीं नहीं है कि निफ्ट कांगड़ा है तो उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, एंड निफ्ट हैदराबाद है या दिल्ली है तो वहीं की पढ़ाई अच्छी होगी. इट्स जस्ट दैट एक्सपोजर जो बड़े शहरों में हमें ज़्यादा मिलता है. यस ऐश्वर्या, सो हाउ इज निफ्ट हैदराबाद? So the thing with NIFT Hyderabad is it is located first of all in a place which is in the center of the town, and it is very convenient. You have metro facilities and all this, and since it is a very big town, so there is connectivity. Apart from all that, the campus is really great. You have hostel facility and the mess facility as well.
and the campus is pretty big. हर एक सेंटर की नॉट सेंटर हर एक ईयर की गर्ल्स अलाउड है आपके हैदराबाद के सेंटर Yes, yes, from the first to third year. Okay, Fourth year actually is not allowed. Till third year we can stay in the hostel. Yeah. Guys, about hostel मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट हर सेंटर में बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल है एंड गर्ल्स थर्ड ईयर तक अलाउड हैं बट फर्स्ट ईयर इज़ द कंपल्शन वन. उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है, उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड ईयर को दी जाती है. एंड यू कैन ऑल्सो चूज एनी फ्लैट और प्लेसेज ऑन रेंट इफ़ यू डोंट वांट टू बी इन द हॉस्टल. तो ये सारे आपके उसी एरिया में मिल जाते हैं जहाँ पे आपका कॉलेज है. सो दिस इज़ हाउ द हॉस्टल थिंग वर्क्स. एंड नॉट टेल मी कि मेस फैसिलिटी कैसी है, बिकॉज most of the time students complain about mess thing. So how is the mess facility there? Mess facility is pretty good, but since mess है वो तो फिर वहाँ पे and it is South India, so you get South Indian food over there. So first year में it was pretty difficult for us to adjust with South Indian food every day. But as time passed by, we got adjusted and used to it. And yeah, mess food एक ऐसी चीज है ना that you get good food and healthy food in a place. आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कहीं से बाहर जाके या कहीं से ऑर्डर करके. एंड द फूड इज द प्राइस इज ऑल्सो वेरी व्हाट डू वी से यू कैन पे. मतलब मेस अलग होगा एंड कैंटीन अलग होगी ना? No, the thing is that it is the same. You pay and you eat. Yeah, you pay and you. Is it something kind day scholar thing also जो डेज में लेना चाहते हैं एंड इवनिंग नहीं लेना चाहते हैं तो वो अलग पे कर सकते हैं? No, so the thing with our mess was that you can just pay and eat for the meal. So ऐसा कुछ hard and fast rule नहीं था that आपका एक fixed amount है, you can just pay. So 40 rupees का एक plate होता था, we used to take that and have it. So yeah. So if we talk academically, आपका first year कैसा था? Like what were the problems you faced actually? See, the problem that I faced was since NIFT was a completely different thing, I didn't have any idea कि हम first year में जाकर करेंगे क्या, है ना. So and since मैंने कोई कोचिंग नहीं किया था तो मुझे गाइडेंस करने के लिए कोई था नहीं. And I was not very much friendly with internet and YouTube then कि मैं वहां पर जाकर सर्च कर पाऊँ या फिर कुछ भी. And now when I'm seeing Sanyukta making videos and all these, I really appreciate her for doing that because वो एक अवेयरनेस जो हमको चाहिए होता है, शी इज डूइंग इट. सो डिफिकल्टी मेरे लिए ये हुई कि जो हमारा असाइनमेंट्स था, हमारे सीनियर्स ने हमको बहुत डरा कर रखा था कि असाइनमेंट्स अच्छे से नहीं करोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कट हो जाएंगे, योर CGPA विल ड्रॉप एंड ऑल दीज थिंग्स. सो काफी सारी चीजें एक साथ थी विच गॉट बिल्ड अप एंड इट वाज डिफिकल्ट टू एडजस्ट इन दैट एनवायरनमेंट. बट या समहाउ फर्स्ट ईयर पास्ड बाय, जूरी हो गई. एंड वन मोर थिंग, क्या रैगिंग भी होती है? लाइक जो हमने फेस किया है अपने टाइम पे, आवर सीनियर्स यूज्ड टू डू अ इंटरैक्टिव सेशन जिसको बाकी लोग रैगिंग भी बोलते थे बट दैट वाज नॉट रैगिंग. वो एक कम्युनिकेशन था हमारे और हमारे सीनियर्स के बीच, बिकॉज आफ्टरवर्ड्स वही सीनियर्स हमारी बहुत हेल्प भी करते थे एंड दे बिकम फ्रेंड्स. सो हैदराबाद में क्या था? सी रैगिंग नाम की चीज तो नहीं थी वहां पे बिकॉज एंटी रैगिंग कम्युनिटी थी वहां पर. बट जैसा कि आपने बोला इंटरैक्टिव सेशन, तो हाँ वो हमारे साथ भी हुआ. एंड आई थिंक इट इज प्रीटी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज देन यू गेट टू नो योर सीनियर्स एंड यू interact with your juniors as well. So it is a pretty good thing and I think it is important. आप ठीक है रैगिंग मत करो but then interacting session is it's always up to you. हाँ, and it's always up to you कि आप अगर नहीं करना चाहते हो, if you are not feeling good, तो आप यू कैन वॉक अवे एंड दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप यू इवन कि रुको, एंड ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं है, यू कैन वॉक अवे. बट ये आपके बाद के रिलेशन के लिए बहुत हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है. सो एरोगेंस नहीं दिखाओ तो बेटर होगा इन द फर्स्ट ईयर. सो लेट मी आस्क कि हाउ डिड यू मैनेज द एक्सपेंसेस? लाइक प्रोजेक्ट्स के लिए खरीदना एंड फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना. बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे फैमिली से आते हैं जो स्कॉलरशिप लेते हैं, जो एजुकेशन लोन लेते हैं. सो आई डोंट थिंक कि उनके पास इतना मनी होता है कि वो यूं ही किसी पार्टी या फिर घूमने फिरने में उसको स्पेंड करें, बिकॉज प्रोजेक्ट्स में आपके खर्च होते हैं. सो टेल मी हाउ डिड यू मैनेज द एक्सपेंसेस?
So the thing with me was that my parents used to send me 8,000 bucks to spend, and in that amount of money I had to eat, and shopping के expenses होते थे, खाने पीने के expenses होते थे. So the thing was that I used to manage, I used to practice sustainability first thing. कि मुझे या अगर मुझे कहीं पे कुछ लाइक आई हैड टू डू माय टेक्सटाइल प्रोजेक्ट्स, तो मैं कहीं से भी चिंदी उठा कर ले आती थी ना. आई यूज्ड टू मेक प्रोजेक्ट्स यूजिंग दैट. और आई हैड अ हैबिट ऑफ हमेशा सेविंग मनी. 500 भी अगर मैं सेव कर पाऊँ, आई यूज टू सेव दैट मनी. आई यूज टू नेवर cut the expenses in my food, because food is something which you should take, and आपकी body उससे healthy रहेगी, and you can work with a good mindset then. तो और हाँ, आपकी असाइनमेंट्स जो है, आप अगर कहीं से कुछ चिंदी का जुगाड़ कर पाओ या कहीं से सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस कर पाओ, डू दैट. रीयूज ऑल द मटेरियल्स. टिप मैं इसके बेसिस पे दूंगी कि बहुत सारे आपके सीनियर्स होंगे जो उसी डिपार्टमेंट में होंगे, एंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में होंगे, और आपको फर्स्ट या सेकेंड ईयर में जब आप जाओ आपको चाहिए होंगी मटेरियल्स, आपको क्लॉथ चाहिए होगा, तो इन दैट केस यू कैन कॉन्टैक्ट योर सीनियर्स ऑल्सो, क्योंकि प्रीवियस प्रोजेक्ट की जो चीज़ें बची हुई होती है कई बार वो आपको दे देते हैं. सो यू कैन डू दैट वे ऑल्सो. ओके ऐश्वर्या, लेट मी नो कि CGPA कितना इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो से. I would suggest CGPA is a secondary thing. First comes your portfolio, which showcases all your skills. तो अगर आपके पास अच्छे skills हैं, your CGPA will definitely boost up, है ना? Because CGPA आपका तभी बढ़ता है when you get good score, and आप good score तभी करोगे when you are getting good marks in your assignments. और assignments में आपको अपनी skills दिखानी होती है. तो first thing that you need to do is upgrade your skills. आपकी skills जितनी अच्छी होंगी, जितनी ज्यादा brushed up और polished होंगी, आपकी CGPA बढ़ेगी definitely. So it's a give and take sort of a thing. एंड अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें, सो प्लेसमेंट्स में ये कितना हेल्पफुल है. लाइक बहुत सारी ऐसी कंपनीज आती हैं जो दे आस्क अबव 8 CGPA, तभी वो आपको इंटरव्यू के लिए बैठने देंगे, एंड बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो दे जस्ट आस्क फॉर पोर्टफोलियो. सो मेरे टाइम पे 2015 में तो देयर वर 90% ऑफ द कंपनीज दे आस्क्ड फॉर पोर्टफोलियो. बट अभी का क्या सिनेरियो है? लाइक अभी आप 1 साल पहले बैठे होगे ना प्लेसमेंट में. No, the thing with us was इसी साल जो placements हुई वहां पे they were asking for above 7.6 CGPA. अब जिन बच्चों का उतना CGPA नहीं होगा, they got cut off. ठीक है, because again taking the COVID time in consideration. ठीक है, तो उनको एक तरीके से they had to divide the students who are like better than the rest. The next thing that came into play was your portfolio, because that is showing your skill, है ना? और वो उसी हिसाब से फिर आपको आगे लेकर जाएंगे. So the CGPA just plays the role in the screening, and I definitely believe that if you are good with your skills and you work hard, you'll get a CGPA more than 8. It's not a big deal. No, sometimes एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि गाइस इसको ध्यान से सुन लेना, अगर आपके किसी भी फैकल्टी के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, सो इन दैट सब्जेक्ट डू नॉट एक्सपेक्ट मार्क्स, क्योंकि मुझे नहीं मिला था. सो दिस इज समथिंग अ रियल फैक्ट. ऐसा होता है और ये हर जगह होता है. तो उस केस में भी CGPA ड्रॉप हो जाता है, बिकॉज इन एनी सब्जेक्ट इफ यू गेट लेस देन 3, 4, 5 तो ऑटोमेटिकली आपका CGPA डाउन हो जाएगा. एम आई राइट? Yeah, you're right. So ऐसा भी है. ओके, टेल मी समथिंग अबाउट इंडस्ट्री इंटर्नशिप. जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट होते हैं, हाउ इज दैट इम्पॉर्टेंट इन द प्लेसमेंट? Yeah, so see, internships and आपकी जो graduation project होती है, that plays a very important role, because the industry environment is completely different from your college environment. आपको industry में जो exposure मिलता है, industry किस तरीके से काम करती है, अंदर का environment क्या होता है ना, that thing is not exposed in the college life. तो आपको internship करना उतना ही ज्यादा जरूरी है, because that goes in your resume first thing, and the next thing is gives you experience. और आगे जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई करोगे ना, द फर्स्ट थिंग दे आस्क फॉर इज आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, या आपने क्या सीखा है, या कितना इंडस्ट्री एक्सपोजर मिला है आपको. सो या आई वुड सजेस्ट कि आपको जितना आप इंटर्नशिप्स कर पाओ, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कर पाओ, जितना एक्सपीरियंस ले पाओ, यू डू दैट इन द टाइम. रिज्यूमे के लिए भी बहुत अच्छा है, एंड आपके प्लेसमेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है. एंड आप मुझे ये बताओ ऐश्वर्या, व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज डू कम फॉर प्लेसमेंट्स हैदराबाद में?
हैदराबाद में देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज दैट कम, बड़ी से बड़ी कंपनीज भी आती है लाइक मिंत्रा, अजियो, यू नो दिस ईयर विप्रो इवन केम फॉर द प्लेसमेंट्स, एंड छोटी कंपनीज भी आती है, यू नो द स्मॉल एक्सपोर्ट हाउसेज एंड ऑल. सो या देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज दैट यू कैन एक्सपेक्ट, एंड वो बच्चे मासेस में उठा के लेके जाती है. इट्स नॉट दैट कि वो टेक्सटाइल की कंपनी है तो वहाँ ग्राफिक डिजाइनर्स की या फैशन कम्युनिकेशन के बच्चों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मास में बच्चे उठाती है. सो या देयर इज अ सॉर्ट ऑफ chances that you know you'll get placed somewhere or the other. Okay, on that note, one more thing, guys, if you are appearing for textile designing or fashion or communication or knitwear, it's nothing कि सिर्फ आप एक fashion या textile designer बन के रह जाओगे या knitwear designer बन के रह जाओगे. There are many fields you can explore after going into only one or two streams. So let us know, Aishwarya, what kind of streams one can explore, like photography है, visual merchandising है, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बच्चों को. See, for me, when I was in textile, right? So I was very much interested, first of all, in graphic designing. तो मुझे graphic designing, which is somebody thinks कि वो FC का ही रोल है सिर्फ, या फोटोग्राफी में मुझे इंटरेस्ट था. सबको लगता है कि नहीं फोटोग्राफी सिर्फ FC वाले करते हैं, बट इट्स नॉट दैट. यू नो यू कैन एक्सप्लोर एवरीथिंग दैट यू हैव विद इन यू, एंड इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड योर स्किल्स. तो जब भी आपके पास टाइम होता है, यू नो यू कैन जस्ट आस्क योर फ्रेंड्स एंड योर फैकल्टीज कि वो आपको थोड़ी सी हेल्प कर दे, मे बी लर्निंग फोटोग्राफी और ग्राफिक डिजाइनिंग, और यू नो मे बी स्टिचिंग, फैशन डिजाइनिंग. तो आप काफी सारी चीजें हैं जो कॉलेज में रहकर एक्सप्लोर कर सकते हो. And there are open opportunities. You are doing bachelor's in design, so yeah, you are a designer. Don't bound yourself कि आप टेक्सटाइल ही डिजाइनर हो या फिर आप फैशन डिजाइनर ही हो. You can just explore your designing skills. Guys, you can go in styling also, content writing also, blogging also, photography also. You can become a fashion photographer. You can explore numerous fields. Yeah, न्यूमरस. आप फैशन में कपड़ों पे काम करते करते यू कैन मूव इनटू बैग्स ऑल्सो. सिर्फ ऐसा नहीं है कि लेदर डिजाइनिंग वाले ही बैग्स पे काम कर सकते हैं. लेदर इज जस्ट लाइक एक मटेरियल है. आप टेक्सटाइल्स ऑन बैग्स कर सकते हो, टेक्सटाइल्स ऑन फुटवेयर्स भी कर सकते हो. सो देर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज यू कैन एक्सप्लोर. सो ऐसा बिल्कुल मत सोचो. एंड पेरेंट्स, अगर आप मेरा ये एपिसोड देख रहे हो तो सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप एक फैशन डिजाइनर बन करके रह जाओगे. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया हैव अ सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी इन टेक्सटाइल. सो बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्सटाइल्स एंड फैशन के कपड़ों के अंदर जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आई गेस, है ना. सो ऐश्वर्या, लाइक लास्ट क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स के लिए कि किस तरीके से एक निफ्ट एस्पिरेंट या डिज़ाइन एस्पिरेंट, अगर वो डिज़ाइनिंग में जाना चाहता है, डजेंट मैटर वो निफ्ट में जाए, NID में जाए, पर्ल में जाए, किसी भी फील्ड, किसी भी कॉलेज में आप जा रहे हो, हाउ वन शुड प्रिपेयर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. फर्स्ट थिंग फॉर द फ्रेशर्स, उनके लिए ये सजेशन होगा कि जब भी वो कहीं भी जा रहे हैं, सो दे शुड बी ओपन टू एवरीथिंग. दे शुड बी ओपन टू ग्रास्प एवरीथिंग दैट इज कमिंग ऑन देयर वे. You should not bound yourself कि हाँ मुझे यही करना है या मुझे यही सीखना है. Just be open to all the opportunity to take new things, because you are starting a new life, a golden life, which is the college life. So yeah, I would suggest, you grasp every opportunity you have. आप पढ़ो, आप सीखो, आप खेलो, do whatever you want and explore yourself. आप जितना खुद को जानोगे आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा, when you move out of the college and you take up a job, so yeah, that is what it is. Okay, Aishwarya, thank you so much for sharing your experiences with me. And मुझे पता है हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखने वाले हैं ये एपिसोड देख करके. So once again, thank you, Aishwarya. So you were hearing Aishwarya from NIFT Hyderabad, and I know आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे guys. And जिस तरीके का सेंटर निफ्ट हैदराबाद है, वैसे ही आपके बाकी के भी निफ्ट के सेंटर्स हैं. So in my upcoming episodes, maybe I would be coming up with more NIFT के सेंटर्स लाइक गांधीनगर हो गया, कांगड़ा हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, विद द एल्यूमिनाई ऑफ देयर, and they are going to discuss their experiences. So stay tuned for my sessions, and if you have not subscribed my channel, go and subscribe it. Hit the bell icon for notifications, because इतने important sessions तो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे.